হ্যালো, তোমাদের সবাইকে স্বাগত আরো একটা হরর ভিডিওতে। গাইস, এখন ভূতের গল্প শুনতে কার না ভালো লাগে? ভূতের গল্প শুনতে তো আমাদের সবারই ভালো লাগে, কিন্তু তার সাথে সাথে না আমার আবার একটু ভয়ও লাগে রাত্রেবেলায়। তো যাই হোক, আজকের এই ভিডিওটায় না আমরা দেখতে চলেছি আর শুনতে চলেছি এমনই একটা খতরনাক সার্কাটা ভূতের গল্পের অ্যানিমেশন। এই ভিডিওটা বানিয়েছে হচ্ছে খুনি মান্ডে চ্যানেল। বাকি তো গাইস, আজকের এই ভিডিওটা শুরু করার আগে না তোমরা যদি এখনো আমাদের এই নতুন চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব না করে থাকো না, তাহলে কি করছো? কি করছো? জলদি জলদি নিচের ওই সাবস্ক্রাইব বাটনটাকে প্রেস করে চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দাও। আর এর আগের দিন আমি ভিডিওটাতে এম করেছিলাম 600টা লাইকের আর 50টা কমেন্টের, যেখানে তোমরা 500টা লাইক তো করে দিয়েছো আর 50টা কমেন্টও করে দিয়েছো, বাট 600টা লাইক না কমপ্লিট করোনি। কিন্তু তারপরও আজকে আমি এই ভিডিওটা এম রাখছি 800টা লাইকের আর 100টা কমেন্টের। আমি জানি যে তোমরা না এই দুটো কমপ্লিট করে দেবে। তোমরা যদি এই দুটো কমপ্লিট করে দাও না, তাহলে এই সমস্ত ভূতের ভিডিও বানানোর জন্য আমি আরো বেশি মনের জোর পেয়ে যাবো আর তোমাদের জন্য এমনই ভূতের ভিডিও আনতে থাকবো। তো জলদি জলদি চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দিও আর এই ভিডিওটাতে লাইক করে দিও। বাকি তো চলো শুরু করা যাক আজকের ভিডিও। सरकटा। आपने सरकटा के बारे में कई कहानियां सुनी होंगी। ভাই, এই সার্কাটার নাম শুনে আমার এখানে না হাত পা লোম একদম খাড়া হয়ে যাচ্ছে। আর এই সার্কাটার নাম কি তোমরা কোনোদিন শুনেছো? আমি তো কয়েকদিন আগে স্ত্রী 2 মুভিতে দেখলাম এই সার্কাটাকে ভাই, তখনই দেখে আমি ভয় পেয়ে मूवीज গেছিলাম। और टीवीज में देखा होगा, लेकिन इस वीडियो में हम आपके लिए बंगाल भाई। में घटी सरकटे की एक सच्ची कहानी लेकर এটা आए। আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গলে ঘটে दिवाकर গেছে আর আমি बचपन से নিজেই ही জানি না लखनऊ में এরকম पला बड़ा ঘটনা। था और वो कई सालों बाद वापस अपने गांव जा रहा था, जो कि वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश बॉर्डर के एक छोटे से कोने पर था। ও ভাই, এর গ্রাম ওয়েস্ট বেঙ্গল আর বাংলাদেশের মাঝখানের একটা ছোট্ট গ্রামে। ভুলেও ওই গ্রামে তোমরা কোনোদিনও যাবে না, কিন্তু আমি আগে থেকে বলে দিচ্ছি। इससे पहले वो अपने गांव सिर्फ बचपन में गया था, এর গাড়ি খারাপ लेकिन হবে अपने রাস্তায়। पेरेंट्स के मरने के बाद अब उसके परिवार में सिर्फ उसकी नानी थी, जिन्हें वो अपने साथ लखनऊ ले जाने के लिए गांव आया था। वो गांव के पास पहुंच तो কেন गया, ভাই তুই আসলি গাঁয়ে উনাকে নিতে? কোনো ওলা উবার বুক করে দিতি, চলে যেত উনি ওলা উবারে। लेकिन वहां की मेन सड़क बारिश की वजह से खराब हो गई थी। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি বলেছিলাম না যাদের গাড়ি খারাপ হয়ে যাবে। এখন গাড়ি তো খারাপ হয়নি ভাই, রাস্তা খারাপ হয়ে গেছে। এখন এর গাড়ি থেকে নেমে হেঁটে হেঁটে যেতে হবে। যা যা নাম দেখ तो তো पास শুনি। में ही एक साइन बोर्ड था, जो कि जंगल के रास्ते ये- से আরে এটা কি খতরনাক জঙ্গল ভাই! এই জঙ্গলে তো আমি কোনোদিন মূত্র বিসর্জন করতেও যাবো না। उसके गांव की तरफ इशारा कर रहा আর था। এখন এখান থেকে হেঁটে হেঁটে যাবে। दिवाकर ने वो रास्ता तो ले लिया, लेकिन उसे नहीं पता था कि वो रास्ता लेना उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती बनने वाला है। शाम ढल रही थी और जंगल का वो रास्ता एकदम सुनसान था। আরো গভীর জঙ্গলে पूरे যাচ্ছে দেখো। रास्ते में बस उसके अलावा और कोई नहीं था। না না, আছে এইখানে কেউ না কেউ আছেই। কেউ না কেউ না থাকলে कुछ কি दूर করে চলবে? जाते ही दिवाकर को अजीब सा भारीपन लगने लगा और उसे ऐसा महसूस हुआ क्यों आछे कि कोई एखाने? 10 फीट का आदमी एक झाड़ी के पीछे खड़ा उसकी तरफ देख रहा है। ওই দেখো ভাই। दिवाकर को लगा कि झाड़ियों में আরে দিবাকরের মনে হচ্ছে ওটা ওই গ্রেট খালি ভাই ভাই যে বক্সিং ফক্সিং করে না, ও রয়েছে এখানে। দেখো তাই করবে ও। कोई जानवर होगा। तो আবে वो थोड़ा জানোয়ার মনে হচ্ছে তো ওকে দেখে। 10 ফুটের মানুষের মতো লোককে দেখে জানোয়ার মনে হচ্ছে। तेजी से चलने लगा ठीक और तभी है। उसके पैरों के नीचे कुछ आया, जिससे तो वो है नीचे। लड़खड़ा कर नीचे गिर गया। जैसे ही उसने पलट कर देखा तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। वो जिस चीज से लड़खड़ाया था वो चीज আরে ভাই এইটা बल्कि किसी কি? इंसान का कटा हुआ सड़ा हुआ আমি দেখতে एक পাচ্ছি না ভাই, सर আমি था। দেখতে পাচ্ছি না। ये देखते ही दिवाकर वहां जा, जोर जा, से जा, भागा भाग, भाग। और जैसे तैसे करके उस एरिया से निकलकर अपने घर पहुंच गया। এত রিয়েলিস্টিক অ্যানিমেশন उसकी ভাই। नानी उसे देखकर बहुत खुश थी और साथ ही हैरान भी। खुश क्योंकि उन्होंने दिवाकर को कई सालों बाद देखा था, আমার তো ওই নানিকে দেখেও গর্ব লাগছে। और हैरान क्योंकि उसके पूरे कपड़े कीचड़ में सने हुए थे। কি চারনা उसने अपनी नानी को बताया कि वो जंगल वाले रास्ते से आया और उसे वहां एक कटा हुआ सर दिखा। ये सुनते ही उसकी नानी का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। उन्होंने बताया कि वो जंगल का रास्ता गांव में कई सालों से सुनसान है। আর কেউ ওই রাস্তা দিয়ে কোনোদিনও আসে না, এটাই বলবে। আর ও এই রাস্তা দিয়ে এসে জীবনের সব থেকে বড় ভুল তো করেই ফেলেছে ভাই। क्योंकि वहां स्कोंदो काटा यानी सर कटा रहता है। कहते हैं कि उनके गांव में एक लंबा चौड़ा पहलवान लड़का रहता था। एक दिन उसे एक लड़की से प्यार हो गया और जब उसने उस लड़की से अपने प्यार का इजहार किया तो আরে उस लड़की ভূতও দেখি নিব্বা নিব্বি বেরিয়ে গেল। के परिवार वालों ने उसको बहुत मारा মার और মার। उसकी बहुत बेइज्जती की। उस दिन के बाद से वो लड़का एकदम पागल हो गया और उसने अपने पागलपन में एक रात उस लड़की को जान से मार डाला। এটা কি उस করলি? लड़की के परिवार वालों ने उसे ये करते हुए देख लिया और उस लड़के को जंगल में ले जाकर उसका सर काट दिया।
उन्होंने उस लड़के के सरकटे शरीर को उसी जंगल में छोड़ दिया और कहते हैं कि तब से सरकटे की সার্কেটের আত্মা ওই জঙ্গলেই ঘুরে বেড়ায়। আমি একটা জিনিস বুঝলাম না, এত কিছু করার পরে ওকে মানে আগুনে পুড়িয়ে ফুরিয়ে দিত তাহলে ওর আত্মা থাকতো না, মুক্তি হয়তো পেয়ে যেত। आत्मा अभी भी उस जंगल में भटकती है और वो अपने बदले की आग में जलता रहता है। कहते हैं कि अगर वो किसी को एक बार दिख जाए तो वो उसे भी मारकर बेटा, तू तो सरकटा बना गेছিস। देता है। তুই গেছিস। दिवाकर ये कहानी सुनकर चौंक गया था, लेकिन उसे इस कहानी এর पर এমনিতেই ফেটে হাতে চলে এসছে, তারপরে এর নানি একে আরো ভয় দেখাচ্ছে। দেখো এ তো গেছে ভাই, এর নানিকে নিয়ে যেতে পারুক আর না পারুক এ এখান থেকে উপরে চলে যাবে। विश्वास नहीं था। उसने अपनी नानी को कहा कि जो उसने जंगल में देखा वो कोई आत्मा नहीं थी, बस एक मरे हुए आदमी का सर था। उसके बाद वो नानी के साथ खाना खाकर सोने चला আবে गया। তুই খাচ্ছিস কি করে? হ্যাঁ, जैसे ही आधी रात हुई, दिवाकर को सोते हुए ऐसा लगा कि जैसे कोई धीमी सी आवाज में उसे पुकार रहा है। ওর খাটের তলায় চলে এসছে তাই তো? उसने उठकर देखा तो उसके कमरे में कोई नहीं था। उसे लगा कि शायद उसकी नानी होंगी, पर जब वो उनके कमरे में गया तो वो गहरी नींद में सो रही थीं। उसे ये अपनी थकान का नतीजा लगा और वो फिर से सोने चला गया। लेकिन उसकी आंख लगते ही उसे फिर से वही आवाज सुनाई दी। दिवाकर ने देखा ওকে ডাকছে कि वो মনে হচ্ছে। उसी जंगल में है और उसके ठीक पीछे अबे एक भाई। 10 फुट लंबा आदमी खड़ा है और उसके हाथ में उसका कटा हुआ सर है। বেটা তুই তো वही গেছিস। भयानक सड़ते मांस वाला कटा सर जो उसे रास्ते में दिखा था। वो सर अब ताकत दिवाकर से से केमन मदद भावे? मांगने लगा और मदद उससे कहने लगा कि क्या दिवाकर उसका सर उसके शरीर पर वापस जोड़ सकता है। আবে এটা और কি मदद বলছে? मांगते ही वो सर कटा बहुत ही भयानक तरीके से हंसने लगा और अचानक दिवाकर की नींद टूट गई। लेकिन जैसे ही दिवाकर की आंख खुली वो कटा सर उसके ठीक सामने हवा में तैर रहा था ভাই এ और কি वो कटा চলছে सर এখানে? আমি পাগল হয়ে যাবো वैसे এইসব দেখে ही দেখে। तरीके से हंस रहा था। दिवाकर के होश उड़ चुके थे, लेकिन वो अपने बिस्तर से हिल ही नहीं पा रहा था। वो डर के मारे जोर से चीखा और तभी उसकी नानी उसके कमरे में आई और उन्होंने कमरे की लाइट्स ऑन कर दी। लाइट्स ऑन करते ही वो कटा सर वहां से गायब हो गया। जब नानी ने उससे पूछा कि उसे क्या हुआ है तो दिवाकर ने अपनी नानी से कहा कि उसने बस एक बुरा सपना देखा है। স্বপ্নটাও চলে এসেছিল তোর ঘরে রে, সত্যি সত্যি। उस रात दिवाकर सो नहीं पाया। उसने गांव वालों से उस सरकटे के बारे में कई किस्से सुने, जिसमें से एक किस्सा ये भी था कि वो सरकटा लोगों से अपने सर को जोड़ने के लिए मदद मांगता है और क्या अगर हुआ? किसी ने उसका सर जोड़ दिया तो वो पूरे गांव का विनाश कर देगा और जो लोग उसका सर जोड़ नहीं पाते তাহলেও তার वो বিনাশ করে দেবে। उन्हें मारकर अपने जैसा सरकटा बना देता है। उस रात जब दिवाकर এত ভয়ানক স্টোরি আমি আমার জিন্দেগিতে শুনিনি। তোমরা কি শুনেছো? হ্যাঁ, তাহলে আমাকে কমেন্টে জানাও। আর এরকম ভয়ানক গল্পের ভিডিও আরো দেখতে চাইলে সেটাও আমাকে জানাও। আমি শুধুমাত্র তোমাদের জন্য আনবো সেরকম ভিডিও। এবার চলো अपने কন্টিনিউ করা कमरे যাক। में सोने के लिए गया तो उसने देखा कि खिड़की के बाहर एक अजीब सा আমার নিজেরই এখন মনে হচ্ছে কি আমার এই জানি না ভাই, আমার বাড়ির আশপাশ দিয়ে আবার কেউ ঘুরে টুরে বেড়াচ্ছে না তো? लंबा सा आदमी আমি शॉल তো আর আমার বাড়ির পাশের আশপাশের বাগানেও যাবো না আজকের পর থেকে। ओढ़े खड़ा है। वो देखते ही दिवाकर घबरा उठा। अचानक से उसका दम घुटने लगा। उसने देखा कि उस আরে सरकटे का এটা सर চুল না হাত? চুল দিয়েই গলা দাবিয়ে দিচ্ছে দেখি। उसके ठीक पीछे है और वो अपने बालों से उसका गला दबा रहा है। इससे पहले कि वो कुछ कर पाता उसे कमरे में एक तेज हवा का झोंका महसूस हुआ और वो एकदम से बेहोश हो गया। कुछ देर बाद जब दिवाकर की आंख खुली तो उसकी नानी उसके सामने थी। दिवाकर अपनी नानी को देखकर रोने लगा और उसने अपनी नानी को सरकटे के बारे में सब कुछ बताया। उसकी नानी बेहद घबरा उठी। दोनों ने डिसाइड किया कि वो सुबह होते ही उस गांव को छोड़ देंगे। उसकी नानी दिवाकर के कमरे में उसके साथ ही लेट गई। लेकिन कुछ ही पलों में जब नानी की आंख खुली तो दिवाकर बेड पर नहीं था। उन्होंने কোথায় पूरे গেছি घर ভাই? में उसकी तलाश की, लेकिन बागाने वो चले गए कहीं थे। नहीं मिला। पीछे बॉनेट भी दिवाकर चले। की नानी बहुत ज्यादा घबरा गई क्योंकि उन्हें डर लगने लगा था कि कहीं वो सरकटा उसे ले तो नहीं गया। उन्होंने गांव वालों से मदद मांगी और वो सब उसे ढूंढने में लग गए।
কিন্তু কেউ কি ওই বনের ভিতরে जैसे যাবে? ही वो जंगल में पहुंचे ও চলে उन्हें গেছে। किसी के जोर से गुर्राने की आवाज आई। দিবাকরের उन्होंने গেম देखा বাজিয়ে দিয়েছে ভাই। कि दिवाकर एक बड़ी सी तलवार लेकर खड़ा है। दिवाकर की आंखें सफेद हो चुकी हैं और वो ए, रघु गुस्से करिस से ना। गुर्रा रहा है, আমি যেটা ভাবছি সেটা जैसे করিস না वो ভাই। बिल्कुल पागल हो गया। दिवाकर की नानी ने उसे आवाज लगाई, लेकिन नानी की आवाज लगाते ही दिवाकर ने एकदम से अपनी तलवार से सबके सामने अपना सर काट लिया। ये देखते ही सब गांव वाले वहां से भाग गए আমি জানতাম और उसकी এরকমই করবে। नानी वहीं जमीन पर गिरकर रोने लगी। सालों बाद किसी ने सरकटे के हाथों एक मौत देखी थी और इसीलिए उस घटना के बाद सभी लोगों ने गांव उस छोड़ गांव दिया। को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया। कहते हैं कि बंगाल में उन जंगलों में अब एक नहीं बल्कि कई सरकटे भटकते हैं, जिन्हें स्कोंदा कोटा या कोंदा कोटा भी बोला जाता है। ওই গ্রামের আশপাশে দিয়েও কেউ কোনোদিন যাদের বাড়ি বাড়ি বর্ডার এলাকায় না, তারা কিন্তু ভুলেও কেউ ওইখানে যাবে না, ঠিক আছে? তাহলে হতে পারে তোমরাও ভূত ফুত হয়ে যেতে পারো। বাকি তো আজকের এই ভিডিওটা এইটুকুই থাক। আমি তো অনেক ভয় পেয়ে গেছি, আমি যাচ্ছি এখন ভগবানের নাম করতে, ঠিক আছে? তারপরে নাম টাম করে একটুখানি যখন সাহস পাবো তখন আবার নেক্সট ভূতের ভিডিও আমি বানাবো। আর হ্যাঁ, তোমরা যদি এখনো চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব না করে থাকো তাহলে কি করছো? হ্যাঁ, জলদি জলদি নিজের ওই সাবস্ক্রাইব বাটনটাকে প্রেস করে চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করো। আর এই ভিডিওটাতে 800টা লাইক আর 100টা কমেন্ট করে আমাকে জানাও তোমরা নেক্সট ভিডিও কিসের উপরে দেখতে চাও। তো চলো আবার দেখা হবে পরের ভিডিওতে। হ্যাঁ, যদি থাকি আমি ঠিকঠাক।